Hello friends and welcome to another fresh episode of Gadget 360 with me टेक्निकल गुरुजी बिकॉज ये एक ऐसा शो है ना जहाँ पे हर बार हम नए नए गैजेट्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फन हमें देखने को मिलता है और इस बार भी गाइज इट्स ऑल द फन ऑफ ऑल द लेटेस्ट कटिंग एज गैजेट्स अपडेट्स अबाउट दीज गैजेट्स और मेरी तरफ से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जो आपने पूछे हैं सब कुछ पैक्ड वेरी टाइटली एंड नाइसली इन दिस वीक्स एपिसोड मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। गाइस हम जितना भी जोर से फास्ट फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएं, वेल लेट मी टेल यू इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू कैच अप विद द गैजेट वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। हर रोज़ वी हैव सम न्यू अपडेट्स, सम न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड, सम रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स आर एट टाइम्स डिसकंटिन्यूड। बहुत कुछ नया हंगामा हलचल होती है चारों तरफ इस गैजेट दुनिया में, बट यू नो व्हाट, I got you covered because me and my team, we compile everything for you pretty nicely in this next segment, which is News of the Week. NVIDIA has unveiled the Jetson Orin Nano Super, a compact yet powerful generative AI supercomputer. ये एज AI और रोबोटिक्स एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है और 100 टॉप्स तक का AI परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, जो रियल टाइम जेनरेटिव AI टास्क्स के लिए परफेक्ट है। OnePlus has officially announced the global launch of its latest flagships, the OnePlus 13 and the OnePlus 13R. ये डिवाइसेस 7 जनवरी 2025 को लॉन्च होंगे और टॉप टियर स्पेसिफिकेशंस के साथ आएंगे। Apple has rolled out the developer beta of macOS Sequoia 15.3, introducing Genmoji, a new feature जो Apple Intelligence के द्वारा powered है। Genmoji एक AI powered feature है जो personalized emojis और avatars बनाने में help करता है। Zomato has launched an accelerated safety response system to ensure immediate help for delivery partners in case of accidents. ये ऐप कोलिजन्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और इमरजेंसी कॉल्स ट्रिगर करके एम्बुलेंस को एग्जैक्ट लोकेशन पर भेजने का काम करता है, thus प्रायोरिटाइजिंग डिलीवरी पार्टनर सेफ्टी। Friends, for the top story this week, I've got these two new amazing smartphones coming from Vivo, and they are really powerful in almost every aspect, be it the performance, be it the display, and especially be it the cameras. ये है Vivo का X200. This is the flagship X200 Pro, packed with features, especially the camera which is done in collaboration with Zeiss. ये phones काफ़ी interesting package लेके आते हैं, just launched in India. Let's see up close what is so special about these two new camera-centric flagship smartphones coming from Vivo. The Vivo X200 and X200 Pro are the latest flagship smartphones from Vivo, जो photography enthusiast पर focus करते हैं, boasting a pro-grade camera system. The Vivo X200 features a 6.67-inch OLED display with a 120Hz refresh rate and up to 4500 nits of peak brightness. ये MediaTek Dimensity 9400 SoC पर powered है और इसमें 16 GB तक की RAM और 1 TB तक की internal storage मिलती है। The phone boasts a triple rear camera setup with a 50 megapixel main sensor और इसमें 5800 mAh की बैटरी है। It is priced at rupees 65,999 for the 12 GB RAM plus 256 GB storage variant and rupees 71,999 for the 16 GB RAM
RAM plus 512GB storage variant. The Vivo X200 Pro offers a slightly larger 6.78-inch 1.5K OLED display and the same Dimensity 9400 SoC. इसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. इसका एडवांस्ड कैमरा सिस्टम Zeiss के साथ को-इंजीनियर्ड है, जिसमें 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है. The device houses a 6000 mAh semi-solid state battery. The Vivo X200 Pro is priced at rupees 94,999 for the sole 16GB of RAM and 512GB of storage variant. So friends, there you have it. आपने जाना इस नई Vivo X200 सीरीज के बारे में. This is my personal pick. Last year it was the Vivo X100 Pro. Later on it became the X100 Ultra, and now it's going to be this one. ये एक ऐसा phone है which I might not use as a smartphone, but I'll definitely use this as a camera. मतलब phone मेरे साथ हमेशा होगा ये. Whenever you have that moment कि you want to capture it, I think I'll pull this one out and I'll get some amazing shots. वैसे you tell me, what is the most important feature? Is it the performance, or is it the design, or is it the camera, maybe the screen that you consider to be the most important while you buy a new phone? आपको पता जवाब कहाँ देना है? It's very simple. It's tg@ndtv.com. Let me hear कि आपकी आवाज़ क्या कहती है about your new smartphone. Guys, let me rewind a bit and let me take you to the year 1936. Just to tell you कि उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो बहुत अलग हुआ करते थे. And in Russia there was a computer which ran on water. जी हाँ दोस्तों, ये कंप्यूटर पानी से काम करता था और ये इंटीग्रेशन कैलकुलेशंस वगैरह को सॉल्व करता था. मतलब computers back in the age were not like the ones that we have today in our pockets. मतलब smart devices with chips and everything. उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं. We didn't have the development of transistors वगैरह उस टाइम पे. But in Russia there was this computer जो कि water tubes का एक नेटवर्क एक तरीके से था. अलग अलग valves थे, अलग अलग pipes थे और यहाँ पे कैलकुलेशंस को किया जाता था और जो एट द एंड रिजल्ट आता था वो मेजर किया जाता था बेसिस ऑफ द वाटर लेवल इन द ट्यूब. टुडे इट्स इन द म्यूजियम इन रशिया. बट हाउ अमेजिंग. कंप्यूटर्स जो पानी पे काम करते थे, पानी की हेल्प से काम करते थे. यू नो अबाउट दिस? Pretty good. If no, then कोई बात नहीं. Keep on watching our show because every week I get all this crazy information just for you guys. Friends, for the next one, it's time to go really far away from here, all the way to Tenerife, next to the African coastline, to enjoy the latest car from Audi, the A6 e-tron. Okay, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिलहाल अफ्रीकन कोस्ट से थोड़ा सा समंदर के बीच में एक आइलैंड पड़ता है टेनरीफ. काफी अच्छी जगह है. देख के लग रहा होगा मैं मार्स से पहुंच गया, बट गाइस मार्स से कम भी नहीं है ये. एंड व्हाट आई हैव विद मी इज दिस ऑडी की नई ऑडी A6 e-tron. आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं. आपको बताता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या टेक है, हाउ एग्जैक्टली दिस कार बिहेव्स, हाउ एग्जैक्टली दिस कार ड्राइव्स. बड़ा मजा आने वाला है. जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कार के डिज़ाइन के साथ. और डिज़ाइन अगर आप देखेंगे सामने से, मैं एक बार इसकी लाइट्स भी अगर ऑन कर दूंगा, यू कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ दिस कार इज, विच इज विद दिस पैटर्न राइट हियर. और ये जो है ये कस्टमाइजेबल एलईडीज आपको मिल जाती हैं, सेम एज द ऑडी Q6 जो हमने देखा था. नीचे आपको मेन हेडलैम्प मिलता है. ग्रिल जो है वो एकदम बिना किसी ओपनिंग के आती है बिकॉज ईवी है, क्या ज़रूरत है ओपनिंग की. एंड गाइज यहाँ पे कार में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा रियर व्यू मिरर कहीं निकल के गिर गया मुझे से देख के लग सकता है, बट फिकर नॉट, बिकॉज यहाँ पे व्हाट वी हैव इज दिस कैमरा जिसका स्क्रीन अंदर की तरफ दिखता है. यू कैन चेंज द एंगल्स जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से. काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वाली फील आ रही है इसको देखने के साथ ही.
एंड इनफैक्ट यहाँ पे कार में अंदर भी काफी सारे अपग्रेड्स किए गए हैं। दिस बाय द वे इज बेस्ड ऑन ऑडी का जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर। और अंदर भी अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे इफ यू सी कि काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इफ यू हैव अ लुक एट दिस, ये काफी बड़ा सा स्क्रीन मेरे सामने है। 11.9 इंचेस इधर है, 14.5 यहाँ पे है, थोड़ा कर्व्ड है ड्राइवर फोकस जिसको रखने के लिए। एंड यहाँ पे पैसेंजर के लिए एक और स्क्रीन है विच इज ऑफ 10.9 इंचेस एज एन ऑप्शन विद प्रिवेसी गार्ड, ताकि जब मैं गाड़ी चलाऊं तो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं। यहाँ पे दिस कंप्लीट कंसोल इज बेस्ड ऑन ऑडी Q6 में हमने देखा था, सिमिलर काइंड ऑफ गियर शिफ्टर, सिमिलर काइंड ऑफ दिस एरिया फॉर कप होल्डर्स। जो अंदर का इंटीरियर है इट इज फ्री ऑफ एनी लेदर, थोड़ा एक डिफरेंट पूरा फील लेके आता है। एंड इफ यू वांट सनरूफ कम्स एज एन ऑप्शन जो कि कम्स विद दिस कस्टमाइजेबल पैटर्न। एंड मतलब जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, स्पेशली द टेरेन जिसमें हम ड्राइव कर रहे हैं ये काफ़ी पहाड़ों वाला है, तो हमने इसमें अपहिल डाउनहिल सब ड्राइव किया है लास्ट 2 दिनों में। और जो एक्सपीरियंस है मैं बोलता हूँ मतलब फील्स लाइक अ वेरी स्मूथ कार। इलेक्ट्रिक की पावर भी है, मतलब इफ यू वांट टू पुश यू कैन क्लियरली डू दैट। एट द सेम टाइम जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी स्मूथली किक इन करती है। मतलब आपको नॉर्मल ना ईवीज में कई बार इफ यू आर नॉट यूज्ड टू इट यू माइट फील कि थोड़ा जर्क लग रहा है, इसमें आपको वो फील नहीं होता है। तो रिकूपरेशन जो है वो एकदम काफ़ी इजीली किक इन करता है। और उसी की वजह से हम जब कल डाउनहिल आ रहे थे तो वी गॉट सम एक्स्ट्रा किलोमीटर्स एडेड टू द रेंज, क्योंकि गाड़ी जब नीचे उतरी तो अपने आप चार्ज होते होते हमको एक्सपीरियंस मिल रहा था। अभी अगर मैं बात करता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तो एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, स्पेशली दिस बिग स्क्रीन सामने जहाँ पे सब चीज़ें आ रही हैं। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी यूनिक इज जो नेविगेशन है उसके लिए जो नेक्स्ट आपको मिलता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट द स्टेप्स, वो आपको सीधा इस हेडरेस्ट में जो स्पीकर है वहाँ से मिलते हैं। तो अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो उस टाइम पे देयर इज नो डिस्टर्बेंस फॉर ऑल द पैसेंजर्स कि हाँ गाना चलते चलते अचानक से बोला टेक अ राइट, वो आपको केवल यहाँ से आएगी आवाज़। बट एक चीज़ जिसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इज दीज मिरर्स। तो ये जो मिरर्स हैं दोनों तरफ, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन हियर दिस बट मेरे को कान में आवाज़ आई है, कीप लेफ्ट आफ्टर 350 मीटर्स। तो बेसिकली ये जो मिरर्स हैं इनकी क्वालिटी में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, वेरी गुड। बट द थिंग इज कि आंखें जो है ना वो आपकी जाती है एक जगह पे हैं, तो आपको थोड़ा सा पता है कि नीचे देखना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा एक आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा सा यूज टू होने में। मैं बात करूं बाहर आने के बाद क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, तो गाइस यहाँ पे द बैटरी कैपेसिटी इज ऑफ 100 किलोवाट्स आवर। अलग अलग वेरिएंट्स हैं, ऑडी A6 e-tron, ऑडी A6 e-tron परफॉर्मेंस, ऑडी A6 e-tron क्वाट्रो एंड ऑडी S6 e-tron। तो ये जो है दिस इज द परफॉर्मेंस वेरिएंट राइट नाउ। 100 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, 756 किलोमीटर्स की मैक्सिमम रेंज आप इससे निकाल सकते हैं। और जो पावर है वो है 270 किलोवाट्स की, लॉन्च होने के साथ में 280 किलोवाट्स, 0 to 100 5.4 सेकेंड्स। रियर व्हील ड्राइव है, टॉप स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर। अगर आप एकदम बात करते हैं हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट विद द S6 e-tron तो उसमें आपको मिलती है टॉप स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर की, 0 to 100 3.9 सेकेंड्स। एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स क्वार्टर का ऑप्शन है, तो चारों टायर्स जो हैं वो घूमने वाले हैं द मोमेंट यू पुश द पेडल। यहाँ पे अगेन वी हैव दिस ओलेड ग्रिड जहाँ पे यू कैन कस्टमाइज द लाइट सिग्नेचर द वे यू वांट। और इनफैक्ट ये इन केस ऑफ लेट्स से सडन ब्रेकिंग या समथिंग जो पीछे वाली कार है उसको भी कम्युनिकेट कर सकती है बाय हैजर्ड सिंबल्स पीछे के साथ में। Well friends, cars भी हो चुकी हैं, मोबाइल्स भी हो चुके हैं, and if you are wondering what's next I have some amazing tip for you और आपके सवालों के जवाब सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी एपिसोड में, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। Hello friends and welcome to the short break to your favorite show Gadget 360 with Technical Guruji। और ब्रेक के बाद सीधा मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको देने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप। See the tip is many times it happens कि जब आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को यूज करते हैं अपने फोन्स के साथ में, फिर चाहे वो एंड्रॉइड हो या आईफोन, समटाइम्स यू लाइक दैट ऑडियो लेवल इज नॉट राइट, आपको शायद ज़्यादा लाउडनेस चाहिए और वो आपको मिल नहीं पा रही है।
Well guys, there are just a few settings to check. अगर आप एक Android phone यूज करते हैं, just try finding absolute volume in the developer options. और अगर आप iPhone यूज करते हैं तो आप Apple Music के settings में जाके साउंड चेक को ढूंढ सकते हैं. वहाँ से अगर आप जो है ट्राई करें तो आई थिंक यू कैन एंजॉय द म्यूजिक अ बिट मोर विद प्रॉपर लाउडनेस. बट हाँ, अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता है then maybe it's time to contact the service center of your earphones. लेकिन yes, these two settings might be of good help अगर आपको आपके earphones में आवाज़ की जो loudness है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है. फ्रेंड्स, टाइम फॉर द लास्ट सेगमेंट, बट टाइम फॉर द मोस्ट फन वन, क्योंकि ये जो आस्क कीजिए वाला सेगमेंट है जहाँ पे आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. मुझे पर्सनली काफ़ी इसमें मज़ा आता है बिकॉज वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स सी इस हफ्ते कैसे क्वेश्चंस हैं. Hey Gaurav, आपके accordingly, which Nokia phone was the most iconic? Nokia phone which was iconic. The list goes very 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 long. मैं अगर बोलता हूँ so the Nokia 6600, the Nokia N95, the Nokia E90, the Nokia N8, the Nokia 808 PureView, the Nokia Lumia 1020. बहुत लंबी लिस्ट है. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक जस्ट वन. बट अगर करना पड़े, you know, with some compromise, because definitely each phone had its own USP, I can pick the Nokia E90 communicator. हेलो गौरव, Amazon और Flipkart पे सेम डिवाइसेस के प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं? It depends on multiple reasons, different sellers, different commissions, different way these two different platforms operate. That's the reason, same product, two different pricing because they are two, consider them two different shops. एक दुकान पे एक आइटम 100 रुपये का मिल रहा है, हो सकता है दूसरी दुकान पे 95 का मिले या फिर 105 का मिले. सो कंसिडर Amazon एंड Flipkart एज टू डिफरेंट स्टोर्स. अब दो डिफरेंट स्टोर्स पे दो डिफरेंट प्राइसिंग बिकॉज द वे दे ऑपरेट इज ऑल्सो अ बिट डिफरेंट. आप ले सकते हैं, बट only and only if your budget is very 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 tight and you cannot stretch it. अच्छा लैपटॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन अगेन जस्ट कीप इन माइंड दैट इट्स ऑलमोस्ट 4 years old now. सो अगर आप M2 मॉडल ले सकते हैं विद एडिंग इन सम मोर, वो ज़्यादा बेटर होगा. बट देन अगेन M1 is still quite a sufficient machine to be used in 2024 if you have that specific kind of usage requirement. Okay, so friends, there you have it. सारे सवालों के सारे जवाब. See how prepared I was and the kind of all questions we received. अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में आपके सवाल का भी जवाब आपको मिल जाए, pretty simple. The first thing you need to do is just write me an email to tg@ndtv.com. And the second thing is of course to pray कि हमारी टीम के पास जो बहुत सारे सवाल आते हैं उनमें से आपका सवाल पिक हो जाए. वेल, आप बातें भेजते रहिए, सवाल भेजते रहिए. चांसेस टू गेट पिक्ड इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू सेंड अस. तो आप सवाल भेज सकते हैं. यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू. यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ndtv.com. कीजिए इंतजार और अपने गैजेट्स का रखिए अच्छे से ध्यान. इन द मीन टाइम आई विल प्रिपेयर अनदर एपिसोड फॉर यू. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. अभी के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.